animals, they also hunt seal. उनको मार लेते हैं, खा लेते हैं. They basically consume raw food. कच्चा मीट खाते हैं. क्यों कच्चा खाते हैं? In the polar region they don't have vegetation. Nothing to burn. क्या जलाएंगे? They don't have vegetation and nothing to burn. So most of the food they consume raw. And पूरे उनका खाना, अभी कोई वालरस को मारा है, 6 महीने चलता है, इग्लू के कोने में रख दिया, ओपन फॉर एवरीवन. न मक्खी होती है, न मच्छर होता है, टेम्परेचर -30 -40 होता है, और दैट इज मेंटेन्ड. सब कोई भी जाए और उसमें से अपना पीस काटे और निकाले खा ले. सो दिस इज ऑल्सो, इट इज ईजी फॉर देम टू सर्वाइव इन दोज कंडीशंस. बस थोड़ा सा वो कच्चा ही खा लेते हैं. अमेरिका में जाके उसी मीट को माइक्रोवेव में रख के खा लेते हैं, और इंडिया में उसको खाने के लिए 1 घंटा प्रिपरेशन करते हैं किचन में. तलते हैं, उबालते हैं, बॉयल करते हैं, रोस्ट करते हैं, टोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, अचार डालते हैं और नमक डालते हैं, और तब इंडिया में खाते हैं. इंडिया का खाने का तरीका सबसे कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली this is like, so this is one culture. It's a sparsely populated region where population density is less than 1 person per square kilometer, or you can say 0.001 person per square kilometer. So its population density is very, very low. Human habitation found in some of the places. Different racial tribal groups are dominating in certain region. Life is dependent on the 2 animals apart from hunting and gathering. So they depend on hunting also, but they are migratory. They have particular marriage system. They marry within their family, within their clan. Other person, other family of their same clan. Same. Sami people will not marry in Yukagir or in Tungus or in Chukchi or in Yahoo. So Sami will marry in Sami only. So they have a particular kind of houses. So altogether they are different to the other region of the world. So that's why this makes one cultural region, that is polar or Arctic cultural region. So I simply discuss the one cultural region. Now come over to the second another cultural region, that is called dry cultural region or the desert cultural region broadly in the world. दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन किसी की है तो आर्कटिक और पोलर कल्चरल रीजन. इनका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल. They are the one who get assimilated in cold conditions. In this desert means deserts, most of the deserts in the world are located in a certain latitude, and in the western margins of the continents, basically Sahara to Arabia, and Arabia to Persia, and Persia up to India. Geographically we can say Middle East. We use a word Middle East. Sometimes we use the word West Asia. West Asia means western part of Asia. Western part of Asia means eastern part of Mediterranean Sea. Western Asia means Western Asia includes Jordan, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Yemen, and all these regions. That is called Gulf of Persia to Mediterranean Sea. This entire area is known as West Asia. If I say Minor Asia, कभी सुना है Minor Asia? छोटा लघु एशिया. Which part is called Minor Asia? Turkey is known as Minor Asia. Sometimes we used to say Southeast Asia. Southeast Asia means
And South Asia बेटे, India falls in South Asia. South East Asia means जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया. no, ऐसे इंडोनेशिया और जापान को इकट्ठा मत जोड़ो. If I say far east, far in the eastern part, इंडोनेशिया. means far east means North Korea, South Korea and Japan are the far east. South east means Malaysia, Borneo and Indonesia are Southeast Asia. And Indochina means between India and China, means Myanmar, Thailand, up to Vietnam, Cambodia, Laos, they are known as Indochina. But sometimes we use the word Middle East. Middle of the globe and eastern side of the globe, mid ka east. This part of the globe, and it starts from mid east, starting from Sahara. Pura Middle East means pura Sahara desert, almost complete Sahara desert, Arab desert, Iranian desert and up to Afghanistan also. This is known as Middle East. कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं अरब कंट्रीज, फिर कई बार हम यूज करते हैं गल्फ कंट्रीज. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. अरब इज ए कल्चरल वर्ड. अरब इज ए कल्चर. Like the chief guest of our Republic Day, Prince Nayan, who came this year, he belonged to which culture? Arab. So he was having a robe on the turban. This is it signifies. So all this is Arab. But there is another culture called Persian culture. Persia is different to Arab. So Irani's people are different to Arabic people. So Arab and Persia are the two different cultural groups. And basically Middle East. So we will discuss the Middle East, means tri-land region. So they are having tribal dominance. Like 3-4 important tribes are there in dry region. So they have Tuaregs, they have Berber, they have Bedouins. There are 3 important tribes. You know, Bedouin, हमारे यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं गाड़िए लुहार या बंजारास. बंजारास सुने हैं? Who are the Banjaras? Nomads, घूमते रहते हैं. एक और दूसरी क्या बताई? दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है बंजारास की? घूमते रहते हैं. और क्या करते हैं? लोहे का काम. घूमते रहते हैं अकेले या फैमिली के साथ? एंटायर फैमिली, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और क्या करते हैं? लोहार का काम. दे आर द ट्रेडर्स. ट्रेडर्स ऑफ व्हाट? किस चीज का व्यापार करते हैं? एनिमल. और पशुओं का एक जगह से खरीदे दूसरी जगह बेच दिए. और क्या करते हैं? नमक खरीदा, यहाँ से नमक खरीदा, आगे जहाँ महंगा हो गया वहाँ बेच दिया. कुछ अनाज खरीदा, यहाँ से खरीदा, आगे बेच दिया. कुछ कपड़े खरीदे, यहाँ से आगे बेच दिए. हिस्टोरिकली दे वर डूइंग. They were the traders. They purchase the cheaper items, sell it out at the higher prices at somewhere else. They were the migratory people, Banjara. So were the Gadiye Luhar. You know Gadiye Luhar? They keep a bullock cart. Cart means gadi. तो Gadiye Luhar, गाड़ी पे रहते हैं. That gadi is their house. Gadi is their drawing room. Gadi is their rest room. It's a retiring room, bedroom, kitchen, all store room. Everything is gadi.
and they carry minimum items for their requirement in their house. जो कम से कम जरूरत की चीजें वो रखते हैं. And they migrate from one place to another. And हालांकि after independence, after World War, we tried a lot to stabilize them at one particular place, but they said we have a culture, so we will not. So they are the tribal people. Tribal people hardly deviate from their cultural characters. कहते हैं हमारे जनरेशन से सब लोग ऐसे चलते आए हैं, so we will also follow the same character. So from one place to another, so basically they were migrating. कई बार they are the Bedouin people basically. सहारा डेजर्ट जुड़ा हुआ है अरब से, और अरब डेजर्ट जुड़ा हुआ है पर्सिया से, ईरान से, और ईरान जुड़ा हुआ है इंडियन डेजर्ट से, थार डेजर्ट से. कई बार ऐसा होता था कोई गाड़ी लोहार ऐसे ट्रेवल करते थे डेजर्ट में. देयर वाज ए मेला, सक, अरेबिक लैंग्वेज में उसको SUQ, सक मीन्स मेला. डेजर्ट में आप देखते हैं ना मेला लगता है, पशुओं का मेला, किसी देवी का मेला. मेला पर्पज होता था, डेजर्ट में सब जगह मार्केट तो होती नहीं है, तो एक साल में एक बार उनको अपने एरिया में कुछ जरूरत की चीज़ों का एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता था. सो दे हैव द प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज देयर गुड्स विच आर रिक्वायर्ड. जिनके पास सरप्लस होती थी वो बेचते थे, और जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें थे वो खरीद के ले आते थे. सो ऑल थ्रू आउट द डेजर्ट देयर वाज ए मेला, और मेले का देयर इज ऑलवेज ए फिक्स डेट कि वहाँ उस डेट पे मेला भरेगा, तो सब लोग जाएंगे. सो दे यूज टू परचेज दी, गांव घूमते हैं, सस्ता एनिमल खरीद लिया, काफ खरीदा, उसको फीड किया, काफ बड़ा हो गया और मेले में ले गए. और जब छोटा बच्चे काफ को खरीदा और मैच्योर कैटल हो गया तो उसको बेचेंगे तो उसको फायदा होगा. सो बेसिकली दैट इज देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. सो दे वेट, कीप रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. घूमते रहते थे एक जगह, एक मेले से फिर अगले में चले गए, एक महीने बाद फिर अगले में चले गए. जहाँ महंगा बिका वहाँ बेच दिया, फिर और सस्ता खरीद लिया, छोटा खरीदा, फिर उसको फीड किया, बड़ा हो गया, फिर बेच दिया. सो बेसिकली दे कीप मूविंग फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर ओएसिस, और वन सक टू अनदर सक, वन मेला टू अनदर मेला. और ये मेले सीजन वाइज चलते रहते हैं. कई बार कोई बेडुइन या कोई गाड़ी लोहार इंडिया में पैदा हो गया कोई बच्चा, जब तक वो पैदल चलना सीखा उसके पेरेंट्स पहुंच गए ईरान. जब वो पैदल चल के चाइल्डहुड में आया, 8-10 साल का हुआ, तब तक पेरेंट्स चले गए अरब. 12, 13, 14, 15 साल होते होते पहुंच गया इजिप्ट. इजिप्ट से फिर उसके पेरेंट्स तो हर मेले पे आगे चलते जाते थे. इजिप्ट से अल्जीरिया, बिल्मा, वहाँ बहुत सारे ओएसिस हैं. बिल्मा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ओएसिस. डिफरेंट ओएसिस में वहाँ रुकते गए, आगे चलते गए. इजिप्ट से अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को तक चले जाते थे. बर्बर ट्राइब है वहाँ, और ये ऑलवेज टेंट में रहते हैं, क्योंकि घर टेंट की तरह उठाया और चले. द टेंट इज ए अरेबिक वर्ड, और जिसको हमने इंग्लिश में यूज किया है. कर्नल गद्दाफी वाज ए बेडुइन. ही वाज रूलिंग लीबिया and he was living in a palace, but within palace there was a tent, और वो टेंट में रहता था. So tent is their lifestyle. तो जितने भी ये डेजर्ट में रहने वाले हैं, गाड़ी में रहेंगे या टेंट में रहेंगे, टेम्परेरी अरेंजमेंट में रहेंगे. तो वही बच्चा मोरक्को जाते जाते 40 साल का हो गया, जवान हो गया, और वैसे ही फिर धीरे धीरे वापस आए. मोरक्को से ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट आते आते उसकी एज 50 साल हो गई. 55 साल तक अरब पार किया. 60 साल में वापस इंडिया पहुंचा. फिर अपने चाइल्डहुड को याद किया, अच्छा यहाँ से 55 में जाता था. देन ही तब तक वो ऐसे चक्कर काटते रहते हैं डेजर्ट में, वन प्लेस, एक ही साइकिल में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाके पूरा करने में उनकी लाइफ पूरी हो जाती है. सो एवरी जनरेशन कीप मूविंग ऑन. सो दे आर द नोमैड्स. in dry culture, in desert, whether it is Tuareg north to south चलते हैं,
मेडिटेरेनियन से गल्फ ऑफ गिनी तक चलते हैं, नाइजीरिया से ट्यूनीसिया तक। आजकल टुआरेग का सबसे बड़ा काम हो गया है। टुआरेग बेसिकली ब्लू कपड़े पहनते हैं और कैमल के ट्रेडर्स हैं, कैमल पे ले जाते हैं, डेजर्ट पार कराते हैं। और बहुत सारे अभी माल्टा में, इंडिया के करीब करीब 25 पंजाब के नौजवान माल्टा के पास मेडिटेरेनियन में एक शिप कोलैप्स कर गया था और वो डूब गया था। तो वो पता चला, यहाँ से वो लोग नाइजीरिया का वीज़ा लेके गए, नाइजीरिया में सोकोटो पहुँच गए, लेगोस, सोकोटो से टुआरेग से बात की कि आप हमें कैमल से पार करा दो। कैमल से वो उनको ट्रिपोली ले गए और ट्रिपोली से बोट में बिठा दिया और मेडिटेरेनियन पार करो, आप इटली, ग्रीस या फ्रांस कहीं ना कहीं तो पहुँच जाओगे। और वो शिप डूब गया, इलीगल माइग्रेंट। अब वो लोग इंडिया वालों से, एजेंट से पैसे ले लेते हैं, एक कैमल पे दो को बिठाते हैं और 15 दिन में पूरा का पूरा पैदल चलते चलते सारा डेजर्ट पार हो जाता है। 15 से 20 दिन में उनको खिलाते पिलाते हैं और डेजर्ट में दे आर टुआरेग्स, सहारा के साउथ से सहारा के नॉर्थ में जाते हैं। ऐसी बर्बर ट्राइब है मोरक्को और ट्यूनीसिया में, ऐसे बेडुइन ट्राइब है, बेडुइन जैसे गार्डियन लुहार है। सो दे हैव ए पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, पर्टिकुलर source of occupation, particular language, particular dance, particular houses. So you know Bedouin dance, Arabian dance, आपने वो देखा होगा, गनगोर देखा है? गनगोर डांस समझते हैं? बिहू समझते हैं? बिहू समझते हैं? गिद्दा समझते हैं? भंगड़ा समझते हैं? तो कालबेलिया समझते हैं? अरे डेजर्ट पे काले कपड़े पहन के राजस्थान की महिलाएं ऐसे ऐसे वो डांस करती हैं, घूमती हैं, तो उसको कालबेलिया बोलते हैं। कालबेलिया इज अरेबिक डांस, इज सिमिलर, अरेबिक इज द कॉपी ऑफ कालबेलिया, या कालबेलिया को उसकी कॉपी कह सकते हैं, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू वन कल्चर, ड्राई कल्चर। पूरी ड्राई कल्चर में एक जैसा डांस होता है। सो दिस इज सेम डांस, सेम फूड हैबिट, सेम लाइफस्टाइल, सेम हाउसिंग सिस्टम। वही कर्नल गद्दाफी लीबिया का प्रेसिडेंट होते हुए भी टेंट में रहता था, बिकॉज ही वाज ए बेडुइन पर्सन। ओरिजिनली दे आर दी कुछ बस गए, दे डेवलप द फीफडम बना लिया, किंगडम बना लिया। सो सम फैमिलीज डेवलप द किंगडम एंड स्टेपलाइज। जहाँ पानी था उसके आसपास उन्होंने अपना घर बनाया। बेसिकली दे वर द नोमैड्स, भेड़, बकरी और गाय, बिकॉज दीज आर द 3 कैटल विच कुड सस्टेन इन ड्राई कंडीशंस। गाय, भेड़ और बकरी, और जहाँ पानी की उपलब्धता है उसके आसपास टंकी एक वो रखते हैं, गधा सामान ढोने के लिए। सो दीज आर दी सम एनिमल्स दे यूज्ड टू। सो दिस इज वन कैरेक्टर ऑफ द ड्राई कल्चर। मैंने आज आपको 2 कल्चरल रील कराए, वन इज द पोलर कल्चरल रील एंड अनदर इज द ड्राई कल्चरल रील। All characteristics I explained. Tomorrow I will start the Oriental cultural reel. Okay, thank you very much for today's class.